Hello friends, myself Naveen Kumar Pardeshi from Nashik. I am going to teach you some questions on work, power, energy today. Okay, so work, power and energy. In physics, in mechanical physics you can say, we consider that the work done by a body is the energy given by the body. So you can consider here work done is equal to energy given by the body. And here power is work done per unit time. So now let us do some exercise on work, power and energy. We will get to know from each exercise by using the different formulas, by using different concepts, what is work, power and energy. तो चलो चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, a box is pushed through 4 meter. एक बॉक्स है, it is pushed through 4 meter. ओके, यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 4 मीटर का. Displacement of the box is 4 meter across a floor offering 100 Newton resistance. The resistance given by the floor is 100 Newton. Okay, resistance always opposes the motion. अगर body यहाँ से इस direction में जा रही है तो resistance will be opposing the body. You can say 100 Newton will be in the opposite direction. Okay. Then the work done by the resisting force is, then work done by this resisting force. We know that work done is equal to dot product of force and displacement. That is, work done is a scalar quantity. Dot product of two vectors is a scalar quantity, as we have learnt in last year. Force into displacement. So we get that it is F into S cos theta. What is theta? Theta is the angle between the force and the displacement of the object. So we can clearly see here that theta between force and displacement is 180 degree. So you can surely write it like that, F into S cos 180 degree. Cos 180 is minus 1, so it is minus F into S. So it will be minus, force is 100 Newton, displacement is 4 meter. 100 into 4, that is minus 400 joule. That is SI unit of work. Now here in the options we have given 40 joule, 400 joules, 4000 joules and 0. So 400 joule is the magnitude of work done by the resistance on the body. But as resistance is opposing the displacement, negative sign is there. So negative, which we must neglect the negative sign because it is showing the direction between force and the displacement. So 400 joule is the accurate magnitude of the work done by this resistive force on this body due to displacement of 4 meter. Next question, a body of mass 5 kg is moved up over 20 मीटर. एक बॉडी है, उसका मास है 5 kg. Mass of the body is 5 kg. It is moved up over 20 meter along the line of the greatest slope of smooth inclined plane of inclination of 30 degree with the horizontal. Okay, inclined plane का है, तो एक inclined plane है, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना रहा है वो horizontal के साथ में. और सपोज बॉडी ऐसी है, ठीक है, बॉडी इज फ्रॉम द स्टार्ट, body is here and it is moving up along the slope by 20 meter. Okay, the distance here to get is 20 meter. It is saying take g as gravitational acceleration as 10 meter per second square, the work done will be. Okay, यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है कि वर्क डन किसने किया है, ठीक है, यहाँ पे वर्क डन उन्होंने दिया नहीं है, यहाँ पे बस दिखा रहा है कि बॉडी यहाँ से लेकर ऊपर जा रही है, 20 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी ऊपर डिस्प्लेस हो रही है. तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे एक ही फोर्स लगा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. बॉडी हाइट चेंज कर रही है, मतलब तुरंत समझ जाना है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बॉडी पे, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में काम कर रही है बॉडी. तो बॉडी इज वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हम क्या करेंगे, उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन हुआ बॉडी में ऊपर जाने के लिए, और वही होगा वर्क डन बाय द बॉडी टू गो एट अ हाइट. बट
हाइट तो हमको पता ही नहीं है, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, बस एक 30 डिग्री एंगल दिया है, 20 मीटर दिया है, हाइपोटेनस हाइट मिल जाएगी। क्या निकाल सकते हो हाइट? ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते, हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम यूज करें sin 30 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, sin 30 इज इक्वल टू हाइट अपॉन 20 मीटर, अगर हम ये यूज करें तो वी विल डेफिनेटली गेट द हाइट विल बी 10 मीटर। ज्यादा मैथमेटिक्स में हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हाइट मिल गई हमको 10 मीटर। अब हमको पता है मास 5 kg है, हाइट है 10 मीटर, और बोल रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए। सो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही होगा वर्क डन। तो यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड पे देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो कंसीडर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो निकालना है, तो यहाँ पे mgh हम निकालेंगे, ठीक है। mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी at highest point will be mgh, that is mass is 5 kg, what is gravitational acceleration 10, what is height is 10, that is 500 जूल। तो यहाँ की एनर्जी बेटा 500 जूल है, यहाँ की एनर्जी 500 जूल है, यहाँ की एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी कितनी गई भाई? 500 जूल एनर्जी गई है टोटल। तो जितनी एनर्जी गई है उतना ही तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन against the gravitational force to pull this block 20 meter at a slant, but अगर हम देखा जाए तो 10 मीटर उसने हाइट गेन की है, तो 10 मीटर हाइट गेन करने के लिए बॉडी को कितना वर्क डन करना पड़ा? तो बॉडी को 500 जूल माइनस 0 जूल इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, जाते हैं 500 जूल अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। मास दिया हुआ है 10 kg इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड है, ठीक है। कहां गया? ओवर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, देन द वर्क डन बाय द वेट विल बी, वर्क डन बाय वेट, भाई किसने वर्क किया? उसके खुद के वेट ने कितना वर्क किया, ठीक है। पूछे पड़ते हैं क्वेश्चन, बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है और फ्रिक्शनलेस सरफेस, आप कैसे भी जाने लो, ठीक है। एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अब हॉरिजॉन्टल वगैरह देना चाहिए था इन्होंने, ठीक है, स्लैंट हो तो कौन सी बात है, बट हम हॉरिजॉन्टल कंसीडर करेंगे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वो बॉडी कांस्टेंटली मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड, है ना। कांस्टेंट अगर बॉडी मूव कर रही है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, तो वहां पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसके ऊपर का फोर्स जीरो लगेगा, फोर्स जीरो होगा तो वर्क डन भी तो जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा उसके ऊपर। इसको दूसरी तरीके से समझते हैं हम, ठीक है। अब देखो बॉडी घूम रही है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, बट उसका वेट परपेंडिकुलर है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्ट कर रहा है। अगर हम देखा जाए तो फोर्स जो कि वेट के द्वारा लगा हुआ फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है एट 90 डिग्री एंगल। तो इस तरीके से भी हम समझे 90 डिग्री एंगल आ रहा है, और अगर हम देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, तो Fs cos थीटा, अगर थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे 90 रख देता हूँ तो cos 90 आएगा 0, तो cos 90 0, तो पूरा वैल्यू हो जाएगी 0। वर्क डन बाय द बॉडी इज 0 जूल बाय मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। हाँ, अगर फ्रिक्शन होता सरफेस में तो हमको उस पे लगने वाली फोर्स द्वारा वर्क डन हम निकाल सकते थे, ओके, बट यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं था, फ्रिक्शनलेस सरफेस था, तो कोई भी फोर्स उस पर नहीं लग रही थी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू I प्लस 2J प्लस K, अब दिया हुआ है उन्होंने कोऑर्डिनेट फॉर्म में I प्लस 2J प्लस K, कैप आप खुद लगा लेना, ठीक है, ये वेक्टर है, कैप आप खुद लगा लेना I J K को, ओके। ये फोर्स वेक्टर दिया हुआ है उन्होंने, और बोला गया है आपको एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया है उन्होंने, और क्या चाहिए हमें, ठीक है। 4I प्लस J प्लस 7K,
ओके, और क्या क्या है, वर्क डन निकालिए भैया। वर्क डन तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है, डॉट प्रोडक्ट हम निकालने में बहुत माहिर है। डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकल जाता है, कैसे निकलेगा डॉट प्रोडक्ट, तो देखो डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैं कुछ चीजें आपको समझा देता हूँ। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनमें का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। अब सर ऐसे कैसे जीरो आएगा सर, तो ऐसे आएगा जीरो। जब भी दो वेक्टर हो उसका डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट की हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आएगा जीरो, क्योंकि cos 90 आएगा जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है उनका आएगा जीरो। तो कौन कौन से सर यहाँ पे वेक्टर परपेंडिकुलर है बच्चा, i परपेंडिकुलर है j को, j परपेंडिकुलर है k को, k परपेंडिकुलर है i को। ये i j के वेक्टर तो सुना होगा ना आपने, इस डायरेक्शन में i, ऊपर की डायरेक्शन में j, उसको परपेंडिकुलर k, ये वेक्टर्स तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो तो कट गए। अब मल्टीप्लिकेशन किसका करोगे, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। बट यहाँ देखने वाली बात ये है कि i डॉट i 1 होगा, j डॉट j 1 होगा, k डॉट k भी 1 होगा। चलो कर लेते हैं, i डॉट i 1, 4 इंटू 1 4, प्लस j डॉट j 1, 2 इंटू 1 1, प्लस k डॉट k 1, 7 इंटू 1 7। क्या आ रहा है, आंसर सही आ रहा है। 12, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2 होता है, 2 1 जा 1 कौन बोला, ठीक है। 13, 13 क्या आएगा, जूल आएगा। कुछ नहीं किया हमने, i को i के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 जा 4 आया, 2j को j के साथ में मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1 2 आया, k को k के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 7 7 आया। तीनों को जैसे कि वैसे एडिशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन कर दी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ये फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आता है 13 जूल। और डॉट प्रोडक्ट वैसे भी स्केलर ही होता है, कोई भी डॉट प्रोडक्ट ले लो आप, आंसर आपका स्केलर ही आएगा। स्केलर का मतलब कोई भी नंबर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वीडियो को थोड़ा स्लो में देखो, ऐसा लग रहा होगा सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, बट यूट्यूब पे मैं डालने वाला हूँ तो उस हिसाब से इतना फास्ट नहीं है। जितना भी फास्ट हो रहा है आप स्लो मोशन में देख सकते हो, जो भी आपको नहीं समझा आप रिपीट कर सकते हो। तो या इट विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट मोर क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, लैडर ऑफ मास 30 kg एंड द लेंथ 6 मीटर। ओहो, सीढ़ी है, मास है सीढ़ी का 30 kg, ओके, लेंथ भी दिया हुआ है 6 मीटर। आगे क्या बोल रहा है वो, रेस्टिंग ऑन अ लेवल फ्लोर। देखो पहले तो सीढ़ी जो है ना वो ऐसे जमीन पे गिरी हुई है। दिस लैडर इज रेस्टिंग ऑन द लेवल फ्लोर, मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लोर है उसके ऊपर पड़ी हुई है लैडर। अब क्या किया उसने, एंड हेल्ड अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल 60 डिग्री। अब मैंने इसको उठा के, बाहुबली, इसको मैंने उठा के, एक ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल के अगेंस्ट मैंने इसको लगा दिया एट एन एंगल 60 डिग्री। किसका एंगल, एट एन एंगल 60 डिग्री विद द फ्लोर, तो ये हो गया 60 डिग्री विद द फ्लोर। देन द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज, अब वर्क डन कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, वर्क डन उसके लिए होता है -mgl sin थीटा अपॉन 2। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि लैडर का सारा वेट यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे है, और उसका सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच है, इसलिए आया mg/2 जो कि बताता है वेट ऑफ द लैडर। ठीक है, मल्टीप्लाई किया मैंने उसको लेंथ से और साइन थीटा से। साइन थीटा क्यों, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब इसका रेशियो ले लिया कि कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उससे मुझको फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। मतलब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स तो ऐसे ही होगा ना, तो साइन थीटा ही लगेगा। अगर फोर्स ऐसे लगता तो कॉस थीटा लग जाता है ना, जिसके साथ एंगल वो थीटा लेना चाहिए। हमने सीखा है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो
तो ये आ गया, बस हमको पुट करना है। ये याद रख लेना, अगर कोई भी लैडर है, लैडर को अगर मैंने उठा के ऐसा लगाना है दीवार से, तो उसका फॉर्मूला आएगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आएगा -mgl sin θ/2। और फिर से देखो नेगेटिव आ रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नेगेटिव आता है। सो माइनस मास कितना है 30, जी कितना है 10, एल कितना है 6, sin थीटा कितना है, sin 60 कितना आएगा √3/2, ठीक है, अपॉन 2। सर बोले अपॉन 2 इंटू 2 लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये देख लो, चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब ये मैं 15 ले लेता हूँ, 150 इंटू 3 45, 450 √3, ठीक है। नेगेटिव में आ रहा है हमारा आंसर जूल, बट यहाँ पे फिर से हमें बस मैग्नीट्यूड लेना ही होगा। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन क्या है, या 450 जूल, 450 √3 जूल। माइनस को उन्होंने कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये बस डायरेक्शन बताता है। नेगेटिव साइन शोज जस्ट डायरेक्शन बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। चलो रफ कर दूं, ठीक, कोई भी डाउट्स आ रहे हैं ना, आप क्लास में पूछ लिया करो। चलो अब मल्टी करेक्ट है, थोड़े से क्वेश्चंस हमने, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही रह सकते हैं। देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ, कोई भी ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं होगा, कब, नो वर्क। अब नो वर्क के पहले, ठीक है, नो वर्क का देख लेते हैं। नो वर्क के लिए देखो सबसे इजी रास्ता है कि भाई हम सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला देख लें। तो वर्क के फॉर्मूले में आती है तीन चीजें, एक आता है फोर्स, दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा आता है उसका cos थीटा। cos थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। होता है ना वर्क डन का है, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो ये है वो थीटा, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो वर्क इज इक्वल टू F इनटू S, मतलब अगर F 0 हो तब भी नो वर्क होगा, S 0 हो तो भी नो वर्क होगा, cos थीटा 0 हो तब भी नो वर्क होगा। मतलब थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, जैसे cos 90, या फिर बोल सकते हो थीटा π/2 रेडियन होना चाहिए, तब नो वर्क होगा। क्या और कोई भी हो सकता है नो वर्क का कंडीशन? हाँ बता सकते हैं आपको, आपको ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन दे दी, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी वही होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन 1 कह रहा है नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को परपेंडिकुलर मतलब डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर, और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है तो cos 0 0 आएगा और फिर से वर्क डन 0 हो जाएगा। पहला ऑप्शन राइट है, नो वर्क, पहला ऑप्शन नो वर्क है। जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा फोर्स को, नो वर्क इज डन। when velocity is perpendicular to force, no work is done. Second option, force is always perpendicular to the acceleration। अब acceleration कैसा चीज है बता देता हूँ। acceleration से आप अंदाजा नहीं लगा सकते डिस्प्लेसमेंट कहाँ होने वाली है। हाँ अगर मैं फोर्स को इसके डायरेक्शन से ले रहा हूँ कि चलो मैं फोर्स को ओके, फोर्स को सपोज मैं इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से ले रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ होने वाला है। बट अगर वेलोसिटी उसकी कुछ और है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ वेलोसिटी चेंज करने के लिए, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन का अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो यहाँ पे कहा गया है व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का अंदाजा नहीं लगा सकते। वी कांट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट इज सेड दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। तो सेकंड का हम कुछ कह नहीं सकते, वर्क डन 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो सेकंड ऑप्शन हम कह नहीं सकते, वी कांट टेल एनीथिंग अबाउट द ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज हम निकाल ही नहीं सकते उसका डिस्प्लेसमेंट कौन से एंगल पे है फोर्स से। ऑप्शन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब बोल रहा है ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। अब ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो नो वर्क आएगा ना। देखो यहाँ पे लिख के रखा है मैंने डिस्प्लेसमेंट 0, नो वर्क इज डन। अगला बोल रहा है द ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स रिमेन्स फिक्स्ड। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स है, फोर्स फिक्स है, फोर्स 0 है, तो नो वर्क इज डन।
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स है बता रहा है और ऑब्जेक्ट तो हिल रहा है, तो नो वर्क इज डन बाय द फोर्स। देखो तीनों कंडीशन आ गई, यहाँ पे नो वर्क, ये वाली कंडीशन नो वर्क, दूसरी ये वाली नो वर्क, ये वाली, तीनों कंडीशन समझ गए। अगला अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, इसी को लेकर हम सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन दे रहा है द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी इज सेड टू बी जीरो इफ, सेम क्वेश्चन है, वर्क डन जीरो कब होगा या फिर नो वर्क कब होगा, नो फोर्स इज अप्लाइड, सही है पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओह, अब बॉडी अगर फोर्स की डायरेक्शन से अपोजिट जाएगी, मतलब उसका अगर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होगा तो दोनों के बीच में का एंगल 180 डिग्री और cos 180 -1 आता है, तो बस मैग्नीट्यूड इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो मिनिमम होगा, ठीक है, मतलब मिनिमम वर्क विल बी डन। मिनिमम वर्क जीरो नहीं होता, जीरो से भी बाद में के नंबर हमने सीखे हैं पहले के, है ना, नेगेटिव नंबर्स हमने सीखे हैं, तो इसका आंसर कुछ नेगेटिव आएगा, -4 इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि 180 डिग्री है, cos 180 -1 आएगा। तो यहाँ भी सेकंड ऑप्शन नो वर्क इज डन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, व्हेन फोर्स इज जीरो नो वर्क इज डन। सेकंड ऑप्शन व्हेन फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट वर्क इज डन बट नेगेटिव वर्क इज डन। अगला द फोर्स इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से है। अगर फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से होगी तो थीटा जीरो होगा, अगर थीटा जीरो है तो cos थीटा 1 होगा, तो ये मैक्सिमम वर्क डन होगा। तो यहाँ पे वर्क डन जीरो की कोई गुंजाइश नहीं है, मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है, तो ऑप्शन 2 भी गलत है, ऑप्शन 2 में भी मैक्सिमम वर्क होगा, क्या हम ढूंढ रहे हैं नो वर्क। अगला है द बॉडी डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, बॉडी अगर मूव नहीं कर रही तो ले लो वर्क डन जीरो हो जाएगा, भले आप कितना भी धक्का मार लो दीवार को, अगर दीवार हिली ही नहीं तो वर्क डन बाय यू विल बी जीरो। ओके, चलो आगे चलते। बहुत काम कर लिया आज, बट मैं हिला ही नहीं, जगह पे ही हूं, तो वर्क डन बाय मी विल बी जीरो। अगर मैं स्कूल जा रहा हूं, रोज घूम के फिर से घर पे आ रहा हूं, वर्क डन विल बी जीरो। तो ठीक है, थोड़ा काम कर लो। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, फोर्स दिया हुआ है उसने 50 न्यूटन, फिर बोला है इज मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 10 मीटर इन ओके इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो बताओ वर्क डन क्या होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा आएगा जीरो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो। फोर्स दिया हुआ है 50 न्यूटन, एसआई में है लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 10 मीटर, एसआई में है लिख दिया, कॉस जीरो आएगा 1, आंसर आएगा 500 जूल एसआई यूनिट में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर अगर बहुत ज्यादा फास्ट में जा रहे हैं तो थोड़ा स्लो करके देख लो, ठीक है। आगे चलते हैं, इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, तो 20 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट, इस 24.2 जूल, वर्क डन बोल रहा है 24.2 जूल। ओके, डेसिमल पॉइंट में आ गया, डेसिमल पॉइंट की एक्सरसाइज की थी ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, अब फिर से सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे हम, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे मान लेंगे कि भाई थीटा जीरो है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो डायरेक्ट यहाँ पे है ना, हमको फोर्स निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डब्ल्यू के नीचे, नीचे मतलब डिवाइड में आ जाएगा, वर्क अपॉन ये कितना होगा 24.2 जूल अपॉन 20 मीटर। सही आ रहा हो क्या, मैं फोर्स ही पूछा है क्या उसने, 20 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे है ना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वही मैं बोलूँ इतना इजी कैसे दे दिया। 20 सेंटीमीटर है तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर आएगा। बच्चा पहले कन्वर्जन देख लो, एसआई में है क्या, जूल एसआई में है, ये एसआई में किया हमने मीटर में, अब लगाएंगे, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर दे तो एकदम इजी आंसर आ जाएगा, 1.21 इंटू 10 टू द पावर -2,
अब इसको इसमें -2 डालना पड़ेगा तो 121 न्यूटन आएगा। करके देख लो, ये है ना 10⁻², ऊपर जाके +2 हो जाता है। एक बार चेक कर लो, अच्छे से सब लिख के दिया है, पॉज करके एक बार खुद से करके देखो तब समझेगा। अभी अगर समझ में आ रहा है आपको, ऐसा ना हो कि बाद में आप बुक खोल के देखो सर हमको तो नहीं आया। जो सॉल्व करेगा उसको आएगा, जो सॉल्व नहीं करेगा उसका कर्म की तरह चक्का फंस जाएगा। तो रिवीजन करते रहो, ठीक है। आगे, a weight lifter is lifting weight of mass 200 kg। भाई वेट लिफ्टर एक वेट ऑफ मास 200 kg उठा रहा है, वाह। फिर अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर, अच्छा खासा हाइट है 2 मीटर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस टाइम दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये देखने जरूरी है, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन। अब देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था वर्क डन जब हाइट में चेंज हो, तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। सपोज ये है वेट लिफ्टर, ये वेट्स उठा रहा है, ठीक है। ये वो वेट उठा रहा है, यहाँ पे है ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, तो यहाँ पे पीई हो जाएगा 0। अब वो 2 मीटर ऊपर तक उठा रहा है उसको, है ना, 2 मीटर ऊपर तक उठा रहा है। यहाँ का पीई हमको निकालना है कि नहीं, 2 मीटर ऊपर तक निकाल रहा है, तो क्या लग जाएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, ऊपर का हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी में चेंज डेल्टा पी, तो फाइनल पी तो 0 है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, इसको नाम देते हैं पीई बी, पीई एट ए, तो पीई एट बी माइनस पीई एट पोटेंशियल एनर्जी एट ए। पोटेंशियल एनर्जी एट ए तो 0 है, तो डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी एट ए लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना होगा, बी के ऊपर कितना वेट है, वेट तो सेम रहेगा सर, चेंज नहीं होगा, mgh होगा, है ना, mgh होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका मास कितना होगा, 200 किलो। ऐसा तो नहीं है कि भाई नीचे 200 किलो का है, ऊपर उठा लिया तो 100 किलो का हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नीचे 200 किलो, ऊपर भी 200 किलो ही रहेगा, तो 200 किलो हो गया, केजी हो गया उसका वेट, मास। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है अच्छे से उसने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई में है क्या, चेक कर लो, हाइट दिया हुआ है 2 मीटर ऊपर खींचा है उसने, 2 मीटर आएगा। अगर इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो 2 to the 4 400 into 9.8, 8 4 the 32, 9 4 the 36, 39, ये क्या आ रहा है, सही आ रहा है 3920 जूल। कितना वर्क डन कर लिया, 200 किलो का वेट 2 मीटर में उठाने के लिए, ठीक है। ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी था, ओके। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, डायरेक्ट आप पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल लो, वर्क डन मिल जाएगा। अगले क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। अगले क्लास में मतलब हम जब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जब सीखेंगे ना, तब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट भी सीख लेंगे। ठीक, कंसेप्ट सिखाना अलग बात होता है, क्वेश्चन के साथ में अगर हम कंसेप्ट सीखे ना तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। बच्चे तो पढ़ ही रहे, कंसेप्ट तो सीख ही रहे, क्वेश्चंस हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मैच देख लेते हैं। फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, याद रखना कांस्टेंट फोर्स है, अगर वो वर्क कर रही है तो वर्क डन हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन स्केलर है इसलिए उसके ऊपर मैंने दंडी नहीं दी, दंडी का मतलब होता है वेक्टर, ठीक है। वो जो बार दिया हुआ है एफ के ऊपर वो क्या होता है, वेक्टर डिनोट करता है कि फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या मिला, स्केलर मिला। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर इज ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, याद रखना, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स है, अगर वेरिएबल फोर्स है तो क्या होगा सर, तो ये वेरिएबल आपकी जिंदगी में अब तक आया नहीं है, या आने वाला है। तो वर्क वेरिएबल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल वर्क करेगा, है इधर उधर का बहुत सारा अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, अलग अलग वर्क होगा, फिर उसका सबका हमको वर्क डन का समेशन करना पड़ेगा,
फिर मिलेगा हमको टोटल वर्क डन। तो समेशन के लिए ये साइन अभी से यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन हम सीखेंगे, लास्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन भी सीखने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। जितने भी वर्क डन है छोटे छोटे ड्यू टू दैट छोटा छोटा फोर्स, उसका सबका एडिशन होगा ये फोर्स। इसका मतलब इंटीग्रेशन का मतलब ही एडिशन होता है, समेशन। ओके, ये वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल या फिर न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क ये ऐसा ही हो जाएगा। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? अर्ग, ERG और न्यूटन डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लो, मैच कर लो। ओके, रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? बच गया, ठीक है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द मास 200 kg। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन मास 200 kg। वर्क डन बाय ग्रेविटी किसने काम किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय ग्रेविटी कह रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 200 ग्राम। ग्राम बोल रहा है, मैं केजी लिख रहा हूं, ठीक है। 0.2 kg हो जाएगा, ठीक है। फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट 3 मीटर, हाइट बोल रहा है 3 मीटर, इज डैश जूल। जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई एम दिया है, जी दिया है, एच दिया है, तो एम जी एच लगा दो, खत्म कर लो, छोड़ो। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा एम जी एच। एक्चुअली H2 माइनस H1 होता है, बट वो ग्राउंड से स्टार्ट किया तो H1 जीरो हो जाता है, तो डायरेक्ट mgh फॉर्मूला लगा देना है हमको, ठीक है। m कितना है? 200 ग्राम, मतलब 0.2 kg इंटू 10 इंटू हाइट होगी 3 मीटर, तो हो जाएगा 2 3 जा 6 जूल, है ना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, तो मैं स्टेटमेंट धीरे धीरे पढ़ूंगा, आप समझिएगा क्या है स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट 1, व्हेन अ पर्सन इज वॉकिंग हॉरिजॉन्टली, माइकल जैक्सन की तरह, ठीक है, हॉरिजॉन्टली चल रहा है, ठीक है, विथ सूटकेस ऑन हिज हेड, ओके, सूटकेस ऑन हिज हेड, नो वर्क इज डन बाय हिम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स तभी वर्क करेगी जब हाइट चेंज होगी। अगर कोई इंसान अपने सर पे सूटकेस लेके घूम रहा है, तो वो सूटकेस की हाइट चेंज नहीं हो रही है, तो हाइट चेंज नहीं होगी, तो नो वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सीधा नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो 90 डिग्री एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे, और इसीलिए भी वर्क डन जीरो हम कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन अ मूविंग व्हीकल, वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स इज नेगेटिव। भाई जब भी ब्रेकिंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, रोकने वाली फोर्स, ऐसा कुछ आएगा ना, तो भाई देख लेना, इस डायरेक्शन में जा रहा है अपना व्हीकल, तो हम उल्टे दिशा में ब्रेक लगाएंगे ना, तभी तो रुकेगी गाड़ी, रेजिस्टिंग फोर्स। तो यहाँ पे एंगल हो रहा है 180 डिग्री, तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि cos 180 -1 होता है, cos 180 -1 होता है, cos 0 1 होता है, तो ये सब लर्न कर लो, ठीक है। cos 90 0 होता है, ये जरूरी है, ठीक है। आगे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो साइन की भी वैल्यूज लर्न करना होंगे आपको, इतने ही वैल्यूज नहीं, साइन 18 डिग्री पूछ लेंगे वो, साइन 12 डिग्री पूछ लेंगे वो, साइन 36 पूछ लेंगे, 53 पूछ लेंगे, उतना प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बोल देंगे। लेवल 2 की तरफ जाते हैं, अब थोड़े से लेवल 2 वाले क्वेश्चंस हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेता हूँ। द ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू 2 kg पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। मास बोल रहा है 2 kg पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, 40 न्यूटन का फोर्स है। अपवर्ड थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, अपवर्ड बोल रहा है थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, ठीक है, ऊपर खींचा है। तो पूछ रहा है हमको द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द अप्लाइड फोर्स एंड द वेट mgr। पहले तो पूछ रहा है आप वर्क डन निकालो,
ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, और सेकंड बोल रहा है वर्क डन ड्यू टू उसके मास की वजह से या फिर उसके वेट की वजह से, बताओ कितना होगा। दो अलग अलग वर्क डन निकालने बोल रहा है। तो देखो सपोज ये ब्लॉक है, जमीन पे पड़ा हुआ है, मैं उसको ऊपर खींच रहा हूँ विद द फोर्स F, और मैंने 2 मीटर ऊपर खींच लिया, ठीक है, इतना इतना फोर्स लगा के। तो फोर्स की वजह से मैंने 2 मीटर उसको ऊपर खींचा है, तो यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, थीटा होगा 0, कॉस 0 आएगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्स है 40 और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 2 मीटर, 80 जूल निकाल दिया, देखो खड़े खड़े, है ना। वर्क डन ड्यू टू फोर्स, उसके वेट के द्वारा वर्क डन कितना होगा भाई, वेट के द्वारा वर्क डन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन। वेट वेट क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो होता है, दूसरा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी है वो है वेट, है तो वो होगा mgh, नहीं व्हाट इज दैट, मास दिया हुआ है 2 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है 10 ले लेते हैं। व्हाट इज हाइट, हाइट भी है फिर से 2, 2 टू द 4 10 द 40 आ गया भाई, 40 जूल, उसके वेट ने 40 जूल वर्क किया, बट उस फोर्स को 2 मीटर ऊपर खींचने में 80 जूल लग गए, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क डन है डिफरेंट डिफरेंट लोगों द्वारा। ये है फोर्स वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, और ये है वर्क डन बाय द मास और वेट। देखो वर्क डन किसने किया है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, वर्क डन बाय वेट। अब देखो वेट है ना ऊपर जा रहा है, वर्क डन बाय वेट नेगेटिव आएगा बच्चों, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी बोल लो, वर्क डन बाय वर्क बोल लो, नेगेटिव आता है। तो 80 जूल और -40 जूल आंसर आएगा, 80 जूल और -40 जूल आंसर आएगा, ओके। ठीक है अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। A 5 kg box rest on a horizontal surface, एक 5 किलो का बॉक्स है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट कर रहा है ना। 5 किलो का है तो मैं इसका फोर्स में लिख देता हूँ उसको कि 15 न्यूटन का फोर्स होगा उस पे, डायरेक्ट नीचे, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द सरफेस इज 0.5। ओहो, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे दिया 0.5। सर अब ये क्या होता है, सर आप डरा रहे हो, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन कुछ नहीं होता, इस पर से हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है। फ्रिक्शन फोर्स होता है, देख लो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन। एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स वो होता है जो सरफेस लगाता है, जो सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से उल्टा एक फोर्स जाएगा जो कि होगा नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी बस ये 2 ही फोर्स है, इसीलिए ग्रेविटी जो भी इसका वेट होगा वही होगा नॉर्मल फोर्स। तो एन की वैल्यू मुझको 50 न्यूटन यहाँ से मिल रही है, म्यू की वैल्यू 0.5 मिल रहा है इंटू 50 न्यूटन, तो ये मिल गई मुझको फ्रिक्शनल फोर्स, 25 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। एफ मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स 25 न्यूटन की लग रही है इस पे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, द वर्क डन, ओके, द horizontal force pulls the box at constant velocity for 10 सेंटीमीटर। सपोज बॉडी यहाँ थी, 10 सेंटीमीटर आगे मूव हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव हो रहा है। कितना मूव हो गया, तो 10 सेंटीमीटर मूव हो गया। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है द वर्क डन बाय द अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स आर रिस्पेक्टिवली। अब भाई आपको क्लियरली बोलूं, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सटर्नल वर्क डन तो 0 हो गया, ठीक है। इस बॉक्स को यहां से यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर लाना है तो उतनी ही फोर्स लगाना पड़ेगी जितना फ्रिक्शन फोर्स है। सपोज फ्रिक्शन फोर्स इस साइड है 25 न्यूटन, तो हमें इस साइड से भी लगभग 25 न्यूटन, 25 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा हल्का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 सेंटीमीटर मूव होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स 25 न्यूटन है जो कि नेगेटिव होगा, -25 न्यूटन,
और ये जो फोर्स लगा रहे हैं हम वो होगा 25 न्यूटन। कुछ वर्क डन पूछा है क्या? वर्क डन पूछा है। अब इसने कितना वर्क डन किया? फ्रिक्शन फोर्स ये इनटू ये कर लो, कितना था 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ना, ये फ्रिक्शन फोर्स इतना मिला, तो इसके द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट माइनस 25 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को 10 इनटू 10 टू -2 लिख देते हैं। तो ये कितना होगा? ये होगा लगभग 2.5 जूल। इसका भी कर लो, वर्क डन इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू -2 मीटर, तो वो हो जाएगा फिर से 2.5 जूल। तो दोनों के द्वारा वर्क डन भी सेम हो जाएगा। इसके द्वारा फ्रिक्शन फोर्स -2.5 जूल वर्क करेगा, और हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसको खींचने में वो आ जाएगा 2.5 जूल पॉजिटिव में। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स के द्वारा 2.5 जूल और फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा -2.5 जूल, दोनों का सेम ही रहेगा। देख लेते एक बार, ऑप्शन भी चेक कर लेते थे हम, ऐसा नहीं है यहाँ पे दिया है। सो द वर्क डन बाय द फोर्स इज आल्सो 2.5 जूल। एक से नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव, 15 का आंसर है 4। वाह वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4 2.5 जूल -2.5 जूल। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16 टॉकिंग अबाउट? ठीक है, मैं जब जब बोर्ड रफ करता हूँ ना, तो आपकी जिम्मेदारी है कम से कम क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, बस मेरे ऐसा देखते मत बैठो बोर्ड रफ करते हुए, सर कैसे बोर्ड रफ कर रहे हैं। ठीक है, तुरंत बुक खोलो, अगला क्वेश्चन पढ़ लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज एट अ पॉइंट a, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द वर्टिकल सर्कल। देखो एक सर्कल है, हाईएस्ट पॉइंट तो यही होगा सर्कल पे। सर हमको सिखाया नहीं है, अरे भाई हाईएस्ट पॉइंट यही है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट यही है, कोई दूसरा होगा तो आ जाना। ठीक है, क्लास में। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट है ये ऑन द वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r। रेडियस भी दिया गया है, यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, सेंटर से यहाँ पे r बोल रहा है, डिस्टेंस है r है, रेडियस उसका r है। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहे हैं? इफ इट इज मूव टू बी लोएस्ट पॉइंट। अब लोएस्ट पॉइंट ये है, उसको है ना b तक मूव किया अलोंग ACB। ठीक है, मैं c यहाँ पे ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल पॉइंट होगा वो, ACB के द्वारा मूव किया हुआ है, C being the horizontal point. वर्क डन बाय ग्रेविटी इज, अरे कुछ तो दो। ओके, मास दिया हुआ है m, बस। ठीक है, इसका मास दिया हुआ है m kg, रेडियस भी दी हुई है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, क्या निकालने बोल रहा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? पोटेंशियल एनर्जी से निकालेंगे हम, हमारे पास कुछ नहीं है बट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, इस पॉइंट को मैं बी नाम दूंगा। पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज 0, पोटेंशियल एनर्जी एट ए मैक्स होगा, कितना होगा पता नहीं सर, निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाइट देख लेते हैं, अगर ये आर है तो ये आर है, और एक आर होता तो आर 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 बन जाता। ठीक है, आर आर आर, ठीक है, मतलब 2r हो गया हाइट। तो हम इसका तो हो गया, पी और बी निकल गया, पी पोटेंशियल एनर्जी एट ए बोल देते हैं इज इक्वल टू mgh। मास कितना हो गया m, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 ले लेंगे हम, हाइट कितना हो गया r प्लस r 2r, तो हो गया 20। जी को जी, ऑप्शन में तो जी को जी रहने दिया है, तो जी को जी रहने देते हैं हम भी। तो 20 क्यों आएगा? 2 आएगा, 2 mgr, RMG लिखा है यहाँ पे, हम भी RMG लिखेंगे, 2 RMG। ठीक है, 2 RMG। अब पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस ही होगा वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो कितना आएगा भाई? 2 RMG माइनस 0, 2 RMG। ठीक है, जूल। ठीक है, यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, 2 RMG। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है इन्होंने? 17 बाइसिकल चेन। ओके, बाइसिकल चेन ऑफ लेंथ 1.6 मीटर। बाइसिकल चेन की लेंथ दिया हुआ है 1.6 मीटर।
बाइसिकल चेन की लेंथ दी हुई है 1.6 मीटर, बाइसिकल चेन की लेंथ दी हुई है 1.6 मीटर एंड मास इज 1 kg एंड मास ऑफ द चेन इज 1 kg, मास दिया हुआ है 1 kg, 1 kg की बाइसिकल चेन है, इज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ओके, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे गिरी हुई है बाइसिकल की चेन, ऐसे गिरी हुई है। ठीक है, चेन निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये 1.6 मीटर की बाइसिकल चेन है, 1.6 मीटर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, इसका मास है m। ओके, इसका मास है m। अब क्या हो रहा है, if g is 10 meter per second square, the work done in lifting it with one end touching the floor and the other end 1.6 meter above the floor, मतलब बस इसको खड़ा कर दिया उन्होंने। ओके, चेन टेढ़ी थी, उसको खड़ा कर दिया, तो बताओ कितना वर्क डन हुआ। तो इसका वर्क डन निकालेंगे कैसे, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है ना। अब उसका मास कितना दिया हुआ है हमको, मास दिया हुआ है 1 kg, बट है ना, अब उसका पूरा मास हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मास दिया हुआ है 1 kg, तो 1 लिख दिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 लिख दिया, हाइट कितना होगा, हाइट उसका आधा ही लेंगे, क्योंकि भाई उसका है ना मास पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आधा मास ऊपर आधा मास नीचे, तो एक्चुअली में हम देखेंगे तो आधी हाइट में ही मूव किया उसको, है ना, h/2। तो h/2 कितना हो गया, 0.8, 0.8 इंटू 10 कितना हो गया, 8 जूल। आंसर सही है क्या हमारा, हाँ आ गया 8 जूल। ठीक है, बस इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास पे ही पूरा वेट कंसीडर करना है, ऐसा नहीं समझना है कि पूरी चेन है वो आधी ही चेन समझो उसको, क्योंकि उसका पूरा मास हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया है, तो भले ही हमने उसको 1.6 मीटर ऊपर लिया हो, वो 0.8 मीटर ही ऊपर हुआ है। तो ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है, वर्क डन बाय द चेन टू हेल्ड इन द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन सच दैट द टिप इज टचिंग द ग्राउंड इज गिवन बाय mgh/2, इसको माइनस कर देना। ठीक है, अब बस अब कर दो, अब ये भी चलेगा, mgl/2 ये भी चल जाएगा, ये फॉर्मूला भी चल जाएगा, mg माइनस mgl/2। ठीक है, दोनों फॉर्मूले चलेंगे, दोनों फॉर्मूले भी सही है। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा स्लो मोशन में देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, फिर से मल्टीपल क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज पुश 2.20 मीटर। ब्लॉक ऑफ मास है 2.5 kg, उसको पुश किया गया 2.20 मीटर, 2.2 मीटर ही लिखता है। ठीक है, 2.20 को 2.2 लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अलाउ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल, फिर से फ्रिक्शनलेस आ गया, बाय कांस्टेंट फोर्स 16 न्यूटन, डायरेक्टेड 45 डिग्री। ठीक है, निकालना ही पड़ेगा। एक ये है ब्लॉक है, ऐसे 45 डिग्री से मैं खींच रहा हूँ उसको। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो फोर्स आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री से मैं उसको खींच रहा हूँ ऊपर। ठीक, कितना ही हिल रहा वो, उसका मास है 2.5 kg, तो यहाँ पे 25 न्यूटन लिख देता हूँ, 25 न्यूटन। ठीक है, पता है कैसे लिख रहा हूँ, mg मास है 2.5 इंटू जी 10, 25 न्यूटन। ठीक है, अब वो 2.2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसे 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 करके 2.2 मीटर, फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और अब तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो भाई सीधा सीधी बात है, वेलोसिटी तो जीरो होगा, उसका फ्रिक्शन फोर्स तो जीरो होगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स जीरो है तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देन द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज 24.9 जूल। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से जो भी वर्क होना है वो होगा, वर्टिकल फोर्स की वजह से तो हो गया। ठीक है, लेट अस चेक वर्क डन बाय, अब सीधा सीधा मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। ठीक है, फोर्स वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, इट इज पुश हॉरिजॉन्टली। फोर्स की वैल्यू दी है क्या, 16 न्यूटन, मैं वही सोचूं
ये फोर्स 16 न्यूटन है, बस अब लगा दो, फोर्स की वैल्यू दी है 16 न्यूटन, ठीक है, ये सब गिवन है, अब आपको बस फॉर्मूला में पुट करना है। 16 इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 1/√2 होता है, 1/√2 की वैल्यू 1.41 होता है, तो 16 इंटू 2.2 डिवाइडेड बाय 1/√2, 1/√2 का मतलब 1/4, 1.414, इसको अच्छे से कैलकुलेट करो, 16 टू द 32, 38 बाई ये 24 के आसपास आएगा नंबर, अप्रॉक्सीमेटली 24.9 जूल तक है, ठीक है, 24.9 जूल, अच्छे से कैलकुलेट करो, ये ऑप्शन आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन उन्होंने दिया था वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज 24.9 जूल, पर वो सही आ रहा है, ठीक है, cos 45 की वैल्यू √2 और √2 की ही वैल्यू आई है 1.414, ओके, ठीक है, रफ करो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं अगला ऑप्शन, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स एक्सिस्टेड बाय द टेबल इज 0, नॉर्मल फोर्स किस पे डिपेंड होता है, नॉर्मल फोर्स किसी पे डिपेंड नहीं होता है ना, नॉर्मल फोर्स सीधा सीधी बात है, नॉर्मल फोर्स जितना वेट होगा, जितना सरफेस उसको अपोज करेगा, जितना सरफेस को परपेंडिकुलर जितना भी फोर्स है उतना नॉर्मल फोर्स होगा, सरफेस को परपेंडिकुलर जितना भी फोर्स है उतना नॉर्मल फोर्स होगा, तो सरफेस को परपेंडिकुलर एन फोर्स है नॉर्मल फोर्स, तो उसको अपोज कौन कर रहा है 25 न्यूटन, तो वो भी 25 न्यूटन का होना चाहिए, तो ये बात गलत है, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल इज नॉट 0, ठीक है, वो 0 नहीं हो सकता, वो 25 न्यूटन होगा। वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज 0, भाई देखो सीधी सीधी बात है, ग्रेविटी नीचे वर्क कर रही है, ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, दोनों के बीच में का एंगल 90 डिग्री, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में का एंगल 90 डिग्री, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में का एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन 0, याद रखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में का एंगल 90 डिग्री, वर्क डन 0, तो सही है ऑप्शन, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0। अगला ऑप्शन है टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक इज 49.8 जूल, ओके, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स पूछा था उसने, नॉर्मल फोर्स 0 नहीं होगा, बट वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0 होगा, तो ऑप्शन 1 जो कि बोल रहा है वर्क डन इज इक्वल टू 24.9 जूल बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ये सही है, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 0, ये भी सही है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 0, ये भी सही है, फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है टोटल वर्क डन इज 49.8 जूल, टोटल वर्क डन यही है ना भाई 24.9 जूल, तो टोटल वर्क डन जितना भी बोल रहा है वो नॉट करेक्ट, ठीक है, 49.8 जूल नहीं आएगा, वो डबल कैसे कर लेगा भाई वर्क डन, टोटल वर्क डन तो उतना ही होगा जितना फोर्स ने किया है, यहाँ पे दूसरा कोई तो काम कर ही नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन, ओके, कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वर्क डन बाय द फोर्स F इज इक्वल टू 3i - 4j + 5k, 3i - 4j + 5k, ये फोर्स है, displaces the body from a point 345 to 725, सपोज ए पॉइंट है 345, बताता हूं मैं ये क्या है, और बी पॉइंट है 745, सही है, नहीं 725, ठीक है, बॉडी ए से बी तक डिस्प्लेस हुई है, इतना फोर्स लगने के बाद में बॉडी ए से बी तक डिस्प्लेस हुई है, ये जो ए दिया हुआ है वो है पोजीशन वेक्टर, उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, और ये जो बी दिया हुआ है वो भी है पोजीशन वेक्टर, ये दोनों पोजीशन वेक्टर पोजीशन बताते हैं, ये पोजीशन ए की बताता है, ये पोजीशन बी की बताता है, डिस्प्लेसमेंट अगर हमको ए बी निकालना है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ए बी, तो वो होगा बी - ए, ठीक है,
तो b के कोऑर्डिनेट्स को a के कोऑर्डिनेट में से माइनस कर दो। 7 माइनस 3 4i, 2 माइनस 4 माइनस 2j, 5 माइनस 5 5 माइनस 4 है ये क्या 6 3 4 6 है ये, गलती कर रहा हूँ मैं। 5 माइनस 6 माइनस k। ओके ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो हो गया फोर्स, वर्क डन निकालना है हमको। वर्क डन इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर लो। डायरेक्ट करता हूँ मैं डॉट प्रोडक्ट। ओके 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा प्लस 8, ठीक है, माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5, 15 जूल आएगा आंसर। ठीक है कर लो खुद से। ठीक है मल्टीप्लिकेशन मैं नहीं सिखाऊंगा। 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5। ये भी कर लेना। ठीक है चलो आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन बड़े बड़े होते जा रहे हैं। A force of 1200 न्यूटन acts on a stone by means of rope slides the stone through distance of 10 मीटर। ठीक है कुछ नहीं है, फोर्स दिया हुआ है 1200 मीटर 1200 न्यूटन। कभी कभी ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, डिस्टेंस 10 मीटर दे दिया डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं डायरेक्ट आंसर आता है तो। ये ना डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, थीटा दिया हुआ है, सब कुछ तो दे दिया, क्या चाहिए हमको। ठीक है तो वर्क डन बाय द फोर्सेस, वर्क डन लगा लो। क्या ही बचा है 1200 इंटू 10 इंटू कॉस 60। बस कॉस 60 की वैल्यू नहीं पता होगी तो लिख लो 1/2 है ना। तो 600 600 इंटू 10 6000। ठीक है कॉस 60 1/2 करके कर लो। अगला क्वेश्चन यहीं पे कर लेता हूँ, रफ नहीं करता हूँ। ठीक है अगला क्वेश्चन है फोर्स दिया हुआ है 3i। अभी इजी है। फोर्स दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस के। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2i प्लस 4j प्लस सी के। अरे सी के माइनस सी के है कि प्लस सी के? प्लस सी के। क्या बोल रहा है वर्क डन इज 16 जूल। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ही पूछ रहा होगा है ना। फाइंड सी सही है। तो वर्क डन 16 जूल दिया हुआ है। वर्क डन हमको और पता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट 3 2 जा 6 4 2 जा माइनस 8 c इंटू 1 c 6 माइनस 8 माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू 16। ये कहाँ से आ गया 16 जूल हो सकता है। हाँ सो ये 16 माइनस 2 18 हो सकता है। 16 माइनस 2 18 कैसे हुआ सर? सर माइनस 2 इधर आ गया प्लस 2 हो गया है ना। 16 प्लस 2 18 आ गया। 18 c की वैल्यू है। देखो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 है। आज पढ़ाते पढ़ाते लाइट चली गई, तो लाइव लेक्चर का वीडियो लेक्चर में कन्वर्जन हो गया। ठीक है ये लेक्चर अच्छे से देखना। ठीक है नहीं तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस 4 क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चंस हम खत्म कर देंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 22। अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन। तो बकेट होल्ड किया हुआ है पर्सन ने। अब ठीक है पर्सन ने बकेट पकड़ी हुई है बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ही मूव्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ऐसा बकेट बकेट पकड़ के चल रहा है। ठीक है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल रहा है बकेट पकड़ के। ओके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। ठीक है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल रहा है बकेट पकड़ के। देन ही क्लाइम्स अप अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ओके पहले ऐसे गया 10 मीटर, फिर ऊपर चढ़ा 10 मीटर। बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है बाद में देखिए, ठीक है पानी की पूरी बकेट लेके चढ़ रहा है ऊपर। होल्डिंग अ बकेट, खाली बकेट है। ठीक है फाइंड द टोटल वर्क डन बाय हिम। अब देखो वर्क डन बाय हिम, वर्क डन तो अगेंस्ट ग्रेविटी ही करेगा। अब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो होता है, ग्रेविटी ऐसे एक्ट करती है, सबको पता है सेंटर की तरफ, और ये परपेंडिकुलर है तो ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके द्वारा वर्क डन 0 हो जाएगा। अब इसके द्वारा वर्क डन कितना होगा mgh
मास ऑफ द बॉडी दिया है क्या, mg सीधा सीधा दे दिया है 10 न्यूटन, 10 इंटू हाइट 10, 100 जूल आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 100 जूल वहां पे लिखा हुआ है, 100 जूल इज द फाइनल आंसर, लगा लो। ठीक है, 20 मीटर तो नहीं है, 10 मीटर ही। ऊपर गया है, अगेंस्ट ग्रेविटी काम किया है, 100 जूल, वाह। ठीक है, बहुत कम खर्च होता है, 100 जूल मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, 23, a box is dragged along the floor by the rope which makes an angle 45 डिग्री with the horizontal। एक बॉक्स को ऐसे खींच के लेके जाना है, ड्रैग्ड मतलब ऐसे रगड़ के लेके जाना 45 डिग्री से। ये फोर्स है, ये बॉक्स है, मैं इसको 45 डिग्री से ऐसे रस्सी बांध के रोप से पकड़ के खींच के लेके जा रहा हूँ। ओके, while the box is dragged 10 मीटर, ठीक है, the tension in the rope is 100 न्यूटन। टेंशन मतलब ही फोर्स है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है और कितना मीटर चला आगे, 10 मीटर तक खींचा ऐसे, 10 मीटर तक बक्से को आगे खींचा है। ओके, 10 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज, अब सीधा सीधा है, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स दिया हुआ है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 10 मीटर, cos थीटा cos 45 लिख देना है, cos 45 आएगा 1/√2, 100 into 1000 by √2, 1.414। ठीक है, 1/√2 की √2 की वैल्यू दे दी थी मैंने 1.414, बस अब सॉल्व करना है, 100 से कम ही आएगा, तो आंसर आएगा, आंसर देख लेते हैं, है ना, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। 707.1, 707.1 क्या, जूल। यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। बेसिक की भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स की भी वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा वो भी देखो, थोड़ा फाउंडेशन, अलग अलग लेसन्स की वीडियो बना रहा हूँ, सभी लेसन्स एक साथ में स्टार्ट कर दिए हैं हमने, मैथमेटिक्स भी, फिजिक्स के भी अलग अलग लेसन, मैथ्स के भी अलग अलग लेसन, तो उसी के साथ हम चलेंगे। मल्टी करेक्ट लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, वो खत्म कर देंगे तो सब कुछ हो जाएगा बस। ओके, 1 किलोवाट आवर हमको बोला है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और कन्वर्जन्स दिए हुए हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, सारा प्रेशर ज़्यादा हो गया है, अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी है। 36 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये होता है फॉर्मूला, और 1 किलोवाट आवर का फॉर्मूला को हम 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला बोला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। ये इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्स जो होता है, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगा देना है, उसके हिसाब से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या है, ऑप्शन 4 अर्ग है। ओके, तो वो गलत है, ठीक है, जूल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, फोर्स है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है जो कि परपेंडिकुलर है उसके वेलोसिटी पे। ये है फोर्स, ये है उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी हम डिस्प्लेसमेंट ही पकड़ लेते हैं, जब भी वेलोसिटी बोले ना डिस्प्लेसमेंट पकड़ लो। ओके, उसके आगे which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in plane. It follows that. अब देखो, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को भी तो परपेंडिकुलर है। फोर्स अगर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है ना, तो एक ही मोशन है, सर्कुलर मोशन। हाँ, अब सर्कुलर मोशन का टोटल वर्क डन तो 0 आता है, सही बात है। सर्कुलर मोशन के द्वारा जब वो यहाँ से लेकर पूरा एक रिवोल्यूशन करके आएगा तो उसका वर्क डन 0 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शंस में देखते हैं हमको क्या पूछा है। बोला है फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो ऑप्शन पढ़ो और आंसर दो। ऑप्शन है इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। भाई देखो, अब सीधी सीधी बात है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये सर्कुलर मोशन में होता है,
और सर्कुलर मोशन पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है। इस पॉइंट पे इधर होगी, 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 इस पॉइंट पे डायरेक्शन उसकी चेंज होगी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होती। तो पहला ऑप्शन गलत है, इट्स वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। ठीक है। सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और नॉट। इट्स एक्सेलरेशन इज आल्सो नॉट कांस्टेंट, क्योंकि देखो कोई वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी तो चेंज होगा। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो, वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग है, डायरेक्शन उसकी अलग है, तो एक्सेलरेशन बस उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज होता जाएगा। ठीक है। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी माइनस यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। है ना। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम मैग्नीट्यूड देखें वेलोसिटी का तो वो चेंज नहीं हो रहा है, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है। आगे का अगर देखिए, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। हाँ, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों करेक्ट है। ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी इन द सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट एंड यस, if force is perpendicular to velocity, object will go through circular motion. Always remember, force perpendicular to velocity, circular motion. ओके, तो इसी के साथ हम हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।